Hello students, once again you are welcomed in Zahra's classes and I am here again yet with another topic of reproduction in plants, and today we will see microsporogenesis. This we will be dealing with the sexual reproduction in plants and we will be studying with microsporogenesis in this lecture. We will study microsporogenesis. Now students, sexual reproduction in plants was discovered by Rudolf Jacob Camerarius. And as you all know, sexual reproduction, it refers to fusion of both male and female gametes, okay, where two individuals are involved, and by the fusion zygote is formed, and this zygote then develops into a new organism. And this new organism is formed only through embryogenesis. Okay, so now the gametes which are formed by same individual or by different individuals of opposite sexes. So these gametes depends, may be formed by the same or may be formed by different individuals of opposite sex. So students, let's start with the topic reproduction in plants. So plant can reproduce both sexually and asexually. पिछले लेक्चर में आपने जो देखा, we discussed about asexual reproduction, but that is again it is removed from your course, so we have to concentrate only on sexual reproduction. So plants, they can reproduce both by sexual mode as well as asexually, and as you can see in plants, the main reproductive organ, that is main sexual reproductive organ is or the organs they are found in flowers. फूल जो होते हैं वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके अंदर होते हैं फ्लावर्स के अंदर, प्लांट के, और जो प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. तो जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो ऑर्गन होते हैं या वो एक साइट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के. Now what is flower then? Flower is the branch of the stem which is modified for sexual reproduction. ये भी एक branch है stem की जो आगे जाके modify हो जाती है, differently modified हो जाती है, और इसमें आपको different organs दिखते हैं, male reproductive organ भी दिखते हैं आपको, female reproductive organ भी दिखते हैं. So ये फ्लावर क्या है? ये एक ब्रांच है किसका? स्टेम का. ये एक मॉडिफाइड ब्रांच है, मॉडिफाइड स्टेम है जिसमें, ठीक है, ब्रांच ऑफ स्टेम विच इज मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जिस एक्सिस पे या जिस पोर्शन पे ये फ्लावर डेवलप होता है, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? पेडंकल, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? मदर एक्सिस. So students, once again revising, sexual reproduction was discovered by Rudolf Jacob Camerarius. The spelling is Rudolf. It is Rudolf Jacob Camerarius. Jacob Camerarius. Okay. Rarius. So he was the person who observed or who discovered sexual reproduction in the year 1694. Or sexual reproduction, as you all know, that it is the fusion of two partners, gametes of two partners, and then it forms zygote. The fusion leads to formation of zygote. Now we will discuss what all things we are going to study in this particular topic, where that is reproduction in plants. So first we will discuss about structure of flower. Then we will see pre-fertilization events in flower, which includes both in male as well as in female. Okay. So here in male we are going to study about stamen, microsporangium and pollen grains, whereas in female we will study in details about pistil, megasporangium and embryo sac. But in this lecture, in this part of the lecture, we will study only this part, that is male part. Then we will proceed further with pollination, pollen pistil interaction, fertilization phase in a flower, then post fertilization events as well as apomixis. तो बच्चों ये पूरा कंटेंट है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट का. यहाँ तक जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ ओवर होता है.
लेकिन ये चैप्टर जो है ये कुछ पार्ट्स में बना होगा और ये जो पार्ट्स हैं आपके 3 to 4 पार्ट्स में ये चैप्टर खत्म होगा। आज मैं पहला पार्ट लेके चल रही हूँ जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन अ फ्लावर, सिर्फ हम इसमें मेल को डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट अस मूव फर्दर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो आप लोगों ने सबने देखा होगा बच्चों की जो फ्लावर होता है एक पर्टिकुलर स्टॉक पे, एक पेडंकल पे होल्ड होता है। वो जो पूरा फूल का जो पूरा एक पंखुड़ी होती है या पूरा फ्लावर जो होता है एक स्टॉक पे खड़ा होता है, उसको हम कहते हैं स्टॉक और या फिर पेडंकल। ठीक है, और यहाँ पे थैलेमस जो होता है वो वाला पोर्शन फ्लावर का जिसमें कि उसका पार्ट फूला होता है, स्वोलन होता है और वो पूरे फ्लोरल बॉल्स को लेके चलता है, उसको हम कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल। जो कलर्ड पोर्शन होता है फूल का उसको पेटल कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है पॉलिनेशन में। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है या पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि पोलेंस का ट्रांसफर हो सके। देन ग्रीन पार्ट जो होता है सेपल्स होता है और ये पूरे फ्लावर को बड कंडीशन में ये प्रोटेक्शन देता है और जब वो बड खुलता है फ्लावर बनता है तो ये इसका जो रोल है वो वहां पे रुकता है। एज वेल एज ये ग्रीन कलर का होता है, सम पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो अकर्स व्हेन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको देखो, जब सेपल और पेटल, यहाँ पे तो सेपल और पेटल आप हमेशा देखते हैं कि ए अलग अलग होता है, कि जैसे एक फ्लावर हुआ उसमें पेटल अलग है और सेपल्स अलग हैं। लेट मी शो यू द फिगर so that it becomes clear. Now you can see in this figure, this we will see. यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो स्टॉक है, this is the stalk on which the flower is settled. Okay, वो जो ये स्टॉक है जो फ्लावर को होल्ड करता है। जब ये स्टॉक ऊपर आता है तो यहाँ पे एक इस पोर्शन में आप देखिए कि यहाँ पे एक स्वोलन बॉडी होती है, स्वोलन पोर्शन होता है, फूला हुआ पोर्शन होता है। उस पोर्शन को हम कहते हैं रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन पोर्शन है, दिस ग्रीन पोर्शन ये है आपका सेपल और ये अल्टीमेटली ये फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्शन देता है। ये सेपल और ये जो पर्टिकुलर कलर्ड पोर्शन है ये होता है पेटल्स जो कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। सो आई थिंक सो नाउ यू आर क्लियर कि देखिए पेटल और सेपल्स अलग अलग अपनी इंडिविजुअल लेवल से खिले हुए हैं, बट in some cases what happens is these sepals as well as petals वो एक ही जगह एक ही साथ होते हैं, डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। तो when sepals and petals they are undifferentiated, आप उनको अलग अलग से आइडेंटिफाई नहीं करते, वो एक जैसे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेरियांत। आप देखिए ये पोर्शन में आपको पेरियांत नजर आएगा, इसमें डायरेक्टली ओवरी है यहाँ पे और यहाँ पे आपको स्टाइल स्टिग्मा ओवरी दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको पेटल कहीं नहीं दिख रहे हैं या सेपल अलग से नहीं दिख रहे हैं। ये पूरी चीज पेटल और सेपल अनडिफरेंशिएटेड है, तो उसको हम पेरियांत कहते हैं और हर एक मेंबर को हम इसमें टेपल कहते हैं। चाहे वो पेटल का रूप ले चाहे सेपल का रूप ले, उसको हम पेटल नहीं कहेंगे या सेपल नहीं कहेंगे, उसको टेपल कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये पेटल है, इसको भी टेपल कहा गया है, यहाँ पे सेपल है, इसको भी टेपल कहा गया। तो जहाँ पे सेपल और पेटल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट नहीं किए जा सकते, उसको हम टोटली कलेक्टिवली हम पेरियांत कहते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल को उसमें हम टेपल कहते हैं। मतलब अलग से हम उसको पेटल या सेपल आइडेंटिफाई नहीं करते, उसको हम डायरेक्टली टेपल कहते हैं। इसके अलावा स्टेमन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि मेल गैमेट्स यानी पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, और कार्पेल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट्स यानी ओवम या एग को प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों ये टोटल था ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर्स में हमको यही चीजें दिखती हैं। एक तो ये सबसे पहले जो स्टॉक है, फिर उसके बाद जो थैलेमस है जो सारे चीजों को होल्ड करके रखता है, उसके बाद सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टैमेन एज वेल एज कार्पल रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। अब हम यहाँ पर आते हैं बच्चों, जो आपको अभी मैंने ये फिगर एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखिए जो सेपल है उसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। ठीक है ना, जो आउटर मोस्ट वर्ल होता है, ये 4 वर्ल होते हैं फूल के, 4 वर्ल यानी 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम वर्ल कहते हैं, जो कि है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अभी जिसको हमने सेपल पढ़ा, पेटल पढ़ा, स्टेमन पढ़ा, कार्पेल पढ़ा,
अब ये हम पढ़ते हैं, ये 4 वर्ल्स हैं जिसमें आउटर मोस्ट वर्ल्ड यानी सबसे पहला वर्ल्ड जो है, जो सबसे पहला वर्ल्ड जो बाकी सारे वर्ल्ड्स को कवर करके रखता है, उसको हम कहते हैं कैलिक्स। और ये कैलिक्स जो है क्या होती है, ग्रीन कलर का होता है और इसके सिंगल मेंबर को हम कहते हैं सेपल्स। अब बात समझ में आ गई बच्चों? सेपल सिंगल, ये सिंगल पंखुड़ी को हम कहते हैं सेपल, लेकिन जब कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं तो उसको हम कहते हैं कैलिक्स। और ये सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता है, ये कलेक्टिवली पूरे फूल को बड कंडीशन में ये कवर करके रखता है। इसका मेन काम है प्रोटेक्ट द बड विच लेटर ऑन बिकम्स अ फ्लावर। द मेन फंक्शन ऑफ कैलिक्स is to protect the flower in bud condition. So I hope so the concept is clear. Single is sepal, collective is known as calyx. Similarly, when you come on to the next whorl, that is you have studied petal. So it is bright colored whorl and present before calyx, यानी calyx से आगे present होता है। और इसके सिंगल मेंबर को हम क्या कहते हैं, पेटल यानी पंखुड़ी, एक होती है पंखुड़ी, और जब कलेक्टिवली हम उसको कहेंगे तो उसको हम कहते हैं कोरोला। Is it clear? Single representative is petal, but combined together it is known as corolla. This is the second whorl, and after calyx the corolla is present, and its main function is to attract insects for pollination. Third whorl is androecium. Okay, inner to the whorl corolla you will find androecium, and its members are termed as stamens. ठीक है, stamens ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये stamens होते हैं, हम आगे stamens को भी पढ़ेंगे। तो एक सिंगल मेंबर है तो उसको stamens कहेंगे, और बहुत सारे हैं तो कलेक्टिवली इट इज नोन एज एंड्रोशियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए स्टेमन है, तो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। ये है एंथर और ये है फिलामेंट जो स्टॉक होता है। दिस स्टॉक इज द व्हाट यू से, इट इज फिलामेंट। ये देखो ये स्टॉक है, ये स्टॉक, दिस इज फिलामेंट एंड दिस वन इज एंथर। ओके, तो ये दोनों को मिला के हम कहते हैं स्टेमन। और ऐसे बहुत सारे, ये देखिए ये 1 स्टेमन है, ये 2 स्टेमन है, ये 3 स्टेमन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। ये टोटल क्या हो गया, एंड्रोशियम। उसी तरह से नेक्स्ट या लास्ट वर्ल है गाइनोशियम, ये इनर मोस्ट है। अब देखिए सबसे पहले था कैलिक्स, फिर आया करोला, फिर उसके बाद आया एंड्रोशियम, और सबसे लास्ट वाला जो वर्ल होता है वो है गाइनोशियम, और ये सबसे इनर मोस्ट है। और इसके मेंबर्स को हम कहते हैं कार्पेल्स। यू कैन सी हियर, सी दिस ग्रीन पोर्शन, एंटायर ग्रीन पोर्शन यू कैन सी ये जो पूरा ग्रीन पोर्शन है, इसमें ऊपर का पोर्शन है स्टिग्मा, फिर जो स्टॉक पे स्टिग्मा है उसको कहते हैं स्टाइल, जो कि स्टिग्मा, और सबसे लास्ट पार्ट है ओवरी। स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है स्टाइल, और ये तीनों को मिला के हम कहते हैं कार्पेल। तो ये एक पर्टिकुलर जो यूनिट है ये कार्पेल है, और इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं गाइनोशियम। So these are the 4 whorls of the flower which are arranged successively. और इसमें कैलिक्स और करोला जो है, कैलिक्स और करोला, इनको हम कहते हैं एक्सेसरी वर्ल्स। रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट अदरवाइज ये इनकी ज़रूरत होती है। बट जो एसेंशियल वर्ल्स होते हैं वो केवल ये 2 होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। दीज आर द एक्सेसरी वर्ल्स। तो याद रखिएगा, कैलिक्स एंड करोला व्हाट आर दे आर एक्सेसरी वर्ल्स, एक्सेसरी वर्ल्स। ओके, एक्सेसरी हैं, ठीक है। वेयर एस एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दे आर essential words. These are essential words. Okay, so I hope so you have understood the entire structure and arrangement of the whorls in the flower. Now coming on to the next part, types of flowers. ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कंप्लीट फ्लावर और एक इनकम्प्लीट। अब इससे क्या मतलब, कंप्लीट फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स दैट कंटेन ऑल फ्लोरल वर्ल्स। जितने भी फ्लोरल वर्ल्स हैं, आपने कितने पढ़े हैं, 4, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो जिस फ्लावर में ये चारों वर्ल्स प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर्स। यू कैन सी एग्जांपल ब्रासिका एंड पेटूनिया। इनकम्प्लीट फ्लावर फिर क्या हुआ, इनकम्प्लीट फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें इन चारों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा वर्ल्स जो है वो मिसिंग होते हैं, पूरे 4 नहीं होते, लेस देन 4 होते हैं, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। एज यू कैन सी एग्जाम्पल स्वीट कॉर्न, मेनी मोस्ट ऑफ द ग्रासेस, स्क्वैश प्लांट, लाइक these are the examples.
इसके अलावा हम परफेक्ट इनपरफेक्ट फ्लावर्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. व्हाट आर परफेक्ट फ्लावर्स? अब यहाँ पे तो पहले वाले में आपने कंप्लीट इनकम्प्लीट बताया, तो चारों वर्ल्स को लेके आपने बताया था. जिसमें चारों वर्ल्स हैं वो कंप्लीट हैं, जिसमें 4 वर्ल्स नहीं है, एक वर्ल या एक से ज्यादा वर्ल्स नहीं है, तो उसको आप इनकम्प्लीट कहते हैं. अब परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्लावर्स में उनको डिफरेंशिएट किया जाता है जिनमें जो 2 एसेंशियल वर्ल्स होते हैं उनमें कितने हैं कितने नहीं हैं. तो परफेक्ट फ्लावर्स आर द फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ एसेंशियल ऑर्गन्स. दे आर नोन एज परफेक्ट और बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट. यानी कि वो प्लांट्स, वो फ्लावर्स जिसमें दोनों एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, उस फ्लावर को हम कहते हैं परफेक्ट फ्लावर. उनको दूसरा नाम भी है बाइसेक्सुअल एज वेल एज हर्माफ्रोडाइट. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देन व्हाट इज इम्परफेक्ट? any one of the wall is missing, any one missing, the flower missing any of the 2 essential whorls. ठीक है ना, इधर उसमें एंड्रोशियम मिसिंग होगा या गाइनोशियम मिसिंग होगा, तो उसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. मेलन है, कुकुम्बर है, गोर्ड है, ये एग्जांपल्स हैं. अब इम्परफेक्ट फ्लावर्स में आप देख सकते हैं स्टैमिनेट, पिस्टिलेट एंड न्यूटर, ये 3 तरह के फ्लावर्स इम्परफेक्ट फ्लावर्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. स्टैमिनेट फ्लावर कौन से होते हैं? जिसमें स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं लेकिन कार्पल्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि इनको हम कहते हैं मेल फ्लावर. इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर मेल फ्लावर, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है. इसको हम एग्जाम्पल इसमें देखते हैं कुकुम्बर. पिस्टिलेट में क्या हो गया? अगेन पिस्टिल या कार्पल एक ही चीज है. तो ये फीमेल फ्लावर होता है जिसमें कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, गाइनोशियम, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो एग्जांपल है फीमेल पपाया फ्लावर. न्यूटर फ्लावर कौन से होते हैं? ये वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें ना तो मेल होता है ना तो फीमेल होता है, एकदम न्यूटर होता है. ये एग्जांपल है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर. नाउ आई विल शो यू द एग्जांपल्स ओवर हियर. सी, दिस इज द पपाया फ्लावर. This is staminate, that is male flower where only stamens are present. This is pistillate, यानी यहाँ पे pistil केवल present है, मेल यानी stamens present नहीं है इन flowers में, इनको हम कहते हैं pistillate flower. And what is hermaphrodite? Hermaphrodite means जिसमें दोनों present होते हैं, stamen as well as pistil या carpel. तो ये हो गया आपके जो imperfect flowers हैं, ये उनके एग्जाम्पल्स हैं. इधर दे में बी स्टैमिनेट, दे में बी पिस्टिलेट, या फिर हर्माफ्रोडाइट तो वो हो गए जिसमें कि आप जिसको कहते हैं कि वो पूरी तरह से परफेक्ट है. अभी आपने न्यूटर फ्लावर का मैं बता दूं कि ये न्यूटर फ्लावर है. दिस इज द स्ट्रक्चर, यू कैन सी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर. सनफ्लावर में आप देखते हैं कि 2 तरह के पेटल्स स्ट्रक्चर होता है. एक तो बिल्कुल बीच में और ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसको आप डिस्क फ्लोरेट कहते हैं. उन फ्लावर्स को आप डिस्क कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, ये वाले. और जो बिल्कुल पेरिफेरी में येलो कलर के होते हैं वो होते हैं रे फ्लोरेट. ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये रे फ्लोरेट है. और ये जो अंदर में जो प्रेजेंट होते हैं डार्क कलर के होते हैं, दे आर डिस्क फ्लोरेट. ओके, तो यहाँ पे जब आप डिस्क फ्लोरेट में देखते हैं तो इसमें ओवरी दिखती है आपको, सेपल्स भी दिखते हैं आपको, तो ओवरी है इसमें. लेकिन जब आप रे फ्लोरेट में देखते हैं तो रे फ्लोरेट में आपको कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं नजर आता. यू विल फाइंड ओनली करोला, सेपल और ब्रैक्ट्स. यहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल. इसलिए ये हो गया आपके एग्जाम्पल ऑफ न्यूटर फ्लावर. आई होप सो स्टूडेंट्स द कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. नाउ कमिंग ऑन टू द मेन पार्ट, दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन अ फ्लावर. तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब 2 पार्टनर्स के गैमेट्स कंबाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ इवेंट्स होते हैं फ्लावर में, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है. तो वो फर्टिलाइजेशन से पहले वाले जो इवेंट्स होते हैं उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं. So events that take place before fertilization are termed as pre-fertilization event. Or before event, following events occur before actual fertilization takes place in plants. तो ये 2 events main होते हैं जो fertilization होने से पहले plants के अंदर, flower के अंदर होते हैं. पहला है गैमेटोजेनेसिस.
यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का बनना, डेवलप होना, ठीक है। और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फ्लावर में डेवलप होते हैं, और वो फिर बाद में मेल, उनके अंदर फिर मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, जहाँ गैमेट्स बनते हैं, पहले ऑर्गन बनते हैं फिर उसके बाद गैमेट्स बनते हैं। तो मेल ऑर्गन को बनने के लिए आप मेल स्ट्रक्चर्स जो हैं आपको पढ़ने होंगे, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। और जब आप फीमेल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसाइक। मेल ऑर्गन क्या है? स्टेमन, और मेल गैमेट क्या है? पोलन ग्रेन्स। उसी तरह से फीमेल क्या है? फीमेल ऑर्गन क्या है? पिस्टिल उसको कहते हैं। और आप एम्ब्रियोसैक को लास्ट में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके प्रेजेंट होगा मेगास्पोरेंजियम। जब आप पढ़ेंगे आगे जाके आप एम्ब्रियोसैक तक जब पढ़ेंगे, इसमें एग जो है वो मेन फीमेल गैमेट होता है। तो अब ये पहला इवेंट हो गया, और दूसरा इवेंट हो गया गैमेट ट्रांसफर, मतलब एक जगह से गैमेट दूसरे पार्टनर में कैसे ट्रांसफर होती है, उसको हम पढ़ेंगे बाय थ्रू पॉलिनेशन एज वेल एज कॉन्टैक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम केवल स्टेमन, डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स पढ़ते हैं। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन अ फ्लावर। स्टेमन का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, क्यों क्या होता है, कैसे डेवलप होती है चीजें। तो स्टेमन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन प्लांट, एंड दिस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर शोज द फॉलोइंग पार्ट्स। 3 पार्ट का बना होता है, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पहला पार्ट होता है फिलामेंट, एज यू कैन सी दिस इज द स्टॉक, और दिस इज द स्टैंड ऑन विच अनदर पार्ट दैट इज एंथर रिसाइड्स और इट रेस्ट्स। तो फिलामेंट वो स्टॉक है, वो तना है जिसके ऊपर एंथर जो है वो टिका होता है। सो इट इज द स्टॉक दैट बियर्स एंथर। एंथर क्या है? दिस इज द एंथर, ओके। एंथर में क्या होता है? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, डाइथिकस और स्ट्रक्चर होता है, एकदम फिलामेंट के टिप पे प्रेजेंट होता है। बाइलोब्ड यानी कि इस तरह से इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए एक ये और एक ये, तो इस तरह से 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, और ईच लोब में 2 पोलन सैक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये एक लोब है, इसमें 2 पोलन सैक हो गए, ये दूसरा लोब है, इसमें 2 पोलन सैक हो गए, ठीक है। तो हर एक लोब में 2 पोलन सैक होते हैं, जिसको आप कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इसको जो पोलन सैक है, ये आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो ये पोलन सैक है, इसको आप कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। इज इट क्लियर? तो ये होता है। और टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हुए? फिर टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज अ टोटल ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट इन एंथर, एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स विच लेटर डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, इसके अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स आगे जाके क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इसका पूरा प्रोसीजर अभी हम पढ़ेंगे। और तीसरी पार्ट जो है वो है कनेक्टिव, एज द नेम सजेस्ट, कनेक्टिव, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है? कनेक्टिव, नाम से ही समझ में आ रहा है, कनेक्ट करता है ये एंथर को फिलामेंट के साथ। जो पोर्शन कनेक्ट करता है दैट इज नोन एज कनेक्टिव। सो द पार्ट अटैच टू द बैक ऑफ एंथर, ये कनेक्टिव होता है। So I hope so the structure of stamen is clear to you all. Let us move now to the detailed structure. अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम हमने पढ़ा, जिसको हम पोलन सैक कहते हैं, 4 होते हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर है, और हर एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जब आप एक ओवरऑल व्यू देखते हैं, दिस इज अ फिगर टेकन फ्रॉम योर बुक, जब आप इस पूरे फिगर को देखते हैं, ये देखिए पूरे फिगर को जब आप देखते हैं, तो इसमें 4 लेयर नजर आती है। सबसे पहली है एपिडर्मिस, जो कि आपको यहाँ पे नजर आएगी, ये वाला पोर्शन, सी दिस इज एपिडर्मिस, that this is epidermis. Second portion, that is second part which resides after epidermis is endothecium. एपिडर्मिस के तुरंत बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो एंडोथीशियम होता है। थर्ड लेयर जो होता है वो मिडल लेयर होता है, ठीक है। आपके ये थर्ड लेयर है, सी दिस वन इज मिडल लेयर। और सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है टपेटम, सी दिस वन। ये पोर्शन जो है यहाँ से, ये जो, लेट मी शो यू, दिस पोर्शन इज योर टपेटम, ठीक, ये टपेटम है। तो पहले 3 पोर्शन जो होते हैं, जो फर्स्ट 3 लेयर्स होते हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम के। एक्चुअली दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम, और इस पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम को वो क्या करते हैं, वो उसको प्रोटेक्शन देते हैं।
और जो सबसे अंदर का लेयर है टपेटम, वो क्या है, वो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन। जो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उसको नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, टपेटम का। इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, टपेटम एंक्लोज करता है किसको, स्पोरोजीनस टिश्यूज को, जो सेंटर में प्रेजेंट होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में। ये देखिए ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना, सी दिस वन, ये जो राउंड पोर्शन है, दिस इज योर स्पोरोजीनस टिश्यू, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये था एक जिसको ओवरव्यू कहते हैं कि ये इस तरह से पूरा, जब आप माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जानना चाहेंगे तो उसमें ये इतने ही पार्ट्स का बना होता है। नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द डेवलपमेंट, कि भाई ये किस तरह से आगे डेवलप होता है और पोलन ग्रेन्स तक कैसे इवेंट्स प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले जब डेवलप होता है एंथर, तो यंग एंथर इज 4 लोब स्ट्रक्चर, और ये किसका बना होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, और ये कवर होता है एपिडर्मिस से। ये देखिए ये पहला फिगर देखिए ए, यहाँ पे ये पूरा मास जो है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स या फिर आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना होता है, और ये कवर होता है सबसे ऊपर की कवरिंग से एपिडर्मिस से। तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल यंग एंथर है। इसके बाद ये एपिडर्मिस के नीचे जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। तो फ्यू हाइपोडर्मल सेल्स जो है, कुछ हाइपोडर्मल सेल्स, वो उनमें कुछ डेवलपमेंट होता है एंड दे स्टार्ट फंक्शनिंग एज आर्कीस्पोरियल सेल्स। ये देखिए 4 कोनों में ये आर्कीस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। कौन से, हाइपोडर्मल सेल्स। कौन से सेल्स, जो एपिडर्मिस के जस्ट बिलो होते हैं उसको आप हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं, और वो बनते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बाकी से थोड़ा डिफरेंट होता है, वो लार्ज होते हैं और एलोंगेटेड होते हैं रेडियली। इनके अंदर बाकी सेल्स के कंपैरिजन में साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट दैट इज क्लियर न्यूक्लियस। देख लीजिए बाकी में और इनमें फर्क देखिए, यू विल फाइंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एज वेल एज इट शोज डेंस साइटोप्लाज्म। तो ये हर 4 कोनों में आपको ये आर्कीस्पोरियल सेल दिखेगा जो कि हाइपोडर्मल सेल्स का मॉडिफिकेशन है। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स जो है, ये आर्कीस्पोरियल सेल्स आगे जो है वो 2 टाइप के सेल्स में डिवाइड होते हैं। कौन से 2 टाइप के सेल्स में, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, ओके, दे आर प्राइमरी पैराइटल सेल्स। तो ये आर्कीस्पोरियल सेल्स डिवाइड होने लगते हैं और डिवाइड होके क्या बनते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल और एक प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। तो जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, ये देखिए ये 2 भाग में ना, तो ये बाहर का जो पोर्शन है, बाहर के जो सेल्स हैं ये बनते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। क्यों, क्योंकि ये आर्कीस्पोरियल सेल 2 भाग में डिवाइड होते हैं, इनका डिवीजन होना शुरू होता है। तो बाहरी हिस्सा जो है प्राइमरी पैराइटल सेल बनता है और एक हिस्सा जो बनता है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनता है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और प्राइमरी पैराइटल एज वेल एज प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स में, ठीक है। अब ये प्राइमरी पैराइटल सेल जो है, आगे इनका क्या फ्यूचर है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स आगे जाके ये 2 से 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर एंथर वॉल बना देता है, यानी कि 2-3 लेयर ऐसे, इस तरह का 2-3 लेयर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ये पैराइटल सेल डिवाइड होता है और ये बना देता है एंथर वॉल। और जो स्पोरोजीनस प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स हैं वो आगे जाके बनता है स्पोरोजीनस टिश्यू। तो प्राइमरी पैराइटल सेल बनता है वॉल और अंदर में क्या बनता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू किससे डेवलप होता है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स से। तो यहाँ पे इतना डेवलपमेंट होने के बाद जब आप एंथर वॉल को देखते हैं, एंथर वॉल जब डेवलप हो जाती है तो एंथर वॉल में क्या दिखता है आपको, एंथर वॉल शोज दिस फॉलोइंग 4 लेयर्स। आउटर लेयर क्या हो गया, एपिडर्मिस, ये देखिए सबसे पहला लेयर एपिडर्मिस। दूसरा लेयर जो हो गया वो भी सिंगल लेयर्ड है, वो है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम आप देखिए ये दूसरा लेयर। तीसरा लेयर जो है मिडल लेयर होता है जो कि 2 से 3 लेयर का बना होता है। और सबसे लास्ट में जो होता है, ये जो सबसे पहला लेयर है ये वाला, ये हो गया अंदर का जो सबसे पहला लेयर है वो हो गया आपके दिस वन, ये वाला जो लेयर है ये जो है ये होता है आपके टपेटम। दिस इज सिंगल इनर मोस्ट सिंगल लेयर। कभी कभी क्या होता है कि जो एपिडर्मिस लेयर है उसके ऊपर फाइब्रस थिकनिंग डेवलप होने लगती है और उस तरह के एपिडर्मल लेयर को हम कहते हैं एक्सोथीशियम। ये एक्सोथीशियम आप आर्सियोथोबियम नाम के प्लांट में मिलेगा आपको। और ये
एक इसका मॉडिफिकेशन है जहाँ पे फाइब्रस थिकनिंग डेवलप हो जाती है। और जो सिंगल लेयर्ड एंडोथीशियल सेल्स है वो इलोंगेटेड होते हैं एज कंपेयर टू अदर सेल्स, और इनके ऊपर कवरिंग होती है सेलुलोज की, और जब मैच्योर होते हैं ये तो ये लिग्निफाइड हो जाते हैं, इनके ऊपर लिग्निन की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, मिडिल लेयर जो है बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, वो जैसे ही पोलन बन जाता है और मैच्योर होने लगता है तो मिडिल लेयर अपने आप डिजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाता है। सो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, इट्स ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इस पूरे स्ट्रक्चर्स में, वो है टपेटम। क्यों? क्योंकि टपेटम के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये क्या करता है, इट पासेस फूड मटेरियल टू स्पोरोजिनस टिश्यू। जो अंदर में जो स्पोरोजिनस टिश्यू, ये देखिए सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, तो इनके अंदर क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यूज में ही डेवलप होंगे प्राइमरी मदर सेल, और ये स्पोर मदर सेल्स को खाना चाहिए होता है, तो ये न्यूट्रिशन जो जाता है वो जाता है आपको टपेटम से। तो टपेटम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट हैज फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस टू। सो हियर व्हेन वी कम ऑन टू टपेटम, अभी तो हम टपेटम के बारे में पढ़ते हैं। टपेटम दो तरीके से अपने बिहेवियर के वजह से दो तरीके से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, टू टाइप्स में। एक होता है ग्लैंडुलर और एक होता है एमीबॉइड। ग्लैंडुलर हम बहुत कॉमनली नजर आता है, हायर और एंजियोस्पर्म्स में आपको नजर आएगा, और ये तभी टूटता है, ये टपेटल लेयर जो है ये स्पोरोजिनस टिश्यूज के बाहर होता है, ये तभी टूटता है जब मैच्योरिटी हो जाती है पोलन की, पहले ये बिल्कुल नहीं टूटता। और ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है कुछ सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिटिव होते हैं और वो पोलन सैक के अंदर वो देता है। Now this tapetum shows the formation of Ubish bodies. These are Ubish, spelling mistake थोड़ा सा, UBISCH. So Ubish bodies बनती हैं इस टपेटम पे, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनती हैं, और ये बिल्कुल टपेटल सेल्स के सरफेस पे बनती हैं। यही यूबिश बॉडीज जो हैं ये क्या करती हैं कि ये एक्सटर्नल थिकनिंग बनाती हैं पोलन ग्रेन्स की, जो कि एक्साइन है, जिसको कहते हैं, जो कांटेदार सबसे पहली कवरिंग होती है एक्साइन, उससे वो किससे बनती हैं, ये यूबिश बॉडी से बनती हैं, जो कि बनी होती हैं स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है, जब हम अमीबॉइड टाइप में आते हैं तो ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का टपेटम होता है, बिल्कुल लोअर इसमें मिलता है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, और ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, और जैसे ही ब्रेक, मतलब पोलन की मैच्योरिटी अभी होती नहीं है और ब्रेक डाउन हो जाता है, तो नेचुरल है जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो सारे टपेटल सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, वो सब एक साथ मर्ज हो जाते हैं और वो फॉर्म होते हैं प्रोटोप्लास्ट मास। और ये प्रोटोप्लास्ट मास जो है ये बनता है टपेटल प्लाज्मोडियम अराउंड पीएमसी। और ये क्यों बनता है, क्योंकि सारा प्रोटोप्लास्ट जो है हर टपेटल सेल का वो फ्यूज हो जाता है। और ये इन दोनों का जो एसोसिएशन है, चाहे टपेटल प्लाज्मोडियम का और पीएमसी का जो एसोसिएशन है, उससे यही सजेशन आता है, उससे यही समझा जाता है कि न्यूट्रिटिव इन्फ्लुएंस है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए ही ये चीजें होती हैं, लेकिन ये बड़ा प्रिमिटिव है, सिर्फ लोअर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में मिलता है। वेरस ग्लैंडुलर जो है वो पूरा मैच्योरिटी तक रहता है और ब्रेकडाउन मैच्योरिटी के बाद होता है, जब तक मैच्योर नहीं होते पोलन ग्रेन्स ये उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद यूबिश बॉडीज से ये एक्साइन लेयर को भी बनाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टपेटम। नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू स्पोरोजिनस टिश्यू, अभी हमने पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं वो दो भाग में बनते हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल जो कि 4 लेयर्स में होते हैं, जिसमें कि टपेटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेयर, दूसरी चीज क्या बनती है, दूसरे प्रकार के सेल्स प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, और ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स किसमें फिर कन्वर्ट होते हैं, दे फॉर्म डिवाइड होके फर्दर वो क्या बनते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज। अब ये देखो स्पोरोजीनस टिश्यूज में क्या होता है, द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यूज, ये जितने भी सेल्स हैं, क्योंकि आपको मालूम है टिश्यूज किससे बनते हैं, सेल्स से, तो जितने भी स्पोरोजीनस टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, और वो बनाते हैं पोलन मदर सेल, जिसको आप पीएमसी कहते हैं, या मियोसाइट्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल वो बनते हैं। सिंगल सेल का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये पोलन मदर सेल जो होता है वो 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। लेकिन जब इनका डिवीजन होता है तो वहां पे कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन, यानी कि हाफ होना। तो यहाँ पे आपके जब पोलन मदर सेल से जो है क्या बनेगा, आपके हैप्लॉइड
पोलन ग्रेन्स बनते हैं और कितना बनता है, एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, यानी N होता है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, ये टेट्राड के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो अब इसको बहुत ध्यान से समझिए, जब मियोसिस होता है यानी कि 2 का हाफ यानी जो मियोटिक डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन होता है, तो 2 पैटर्न का डिवीजन होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो 2 पैटर्न से होता है, एक होता है सक्सेसिव और दूसरा जो होता है वो होता है साइमल्टेनियस। ठीक है, तो अभी हम पहले सक्सेसिव पढ़ लेते हैं। सक्सेसिव में क्या होता है, दिस पोर्शन इज योर सक्सेसिव, ओके, दिस पोर्शन इज योर सक्सेसिव। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है सक्सेसिव के टाइम में, ड्यूरिंग सक्सेसिव में क्या होता है, जैसे ये पहला डिवीजन हुआ तो पहले डिवीजन के तुरंत बाद क्या होता है कि एक वॉल बन जाती है। जैसी डिवीजन हुआ तो डिवीजन में 2 वॉल बन जाती है। ठीक है, इनको सेपरेट करते हुए, सेपरेटिंग द 2 न्यूक्लियाई। और इससे जब 2 न्यूक्लियस को जब सेपरेट हो जाते हैं, जब डिवीजन हो जाते हैं, देखिए डिवीजन हो रहा है और 2 न्यूक्लियाई जब बन रहे हैं तो उनके बीच में एक वॉल बन जाती है और इससे ये पहला स्ट्रक्चर बनता है पहले डिवीजन के बाद, उसको आप कहते हैं डायाड। तो डायाड फॉर्मेशन होता है पहले मियोटिक सब डिवीजन के बाद, और यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन होती है पहले मियोटिक सब डिवीजन के बाद, वॉल प्रोमिनेंट वॉल होती है और इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप कहते हैं डायाड, डायाड यानी 2। उसके बाद क्या होता है कि ये जो 2 सेल्स डायाड के बने, फिर से वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं, फिर से वो सेकेंड मियोटिक सब डिवीजन उनमें होता है और उससे रिजल्ट क्या होता है, 4 सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो 4 सेल बनते हैं तो उसको हम कहते हैं टेट्राड। तो टेट्राड फॉर्मेशन होती है सेकेंड मियोटिक सब डिवीजन के बाद। तो आप देखिए कि हर डिवीजन के बाद, मियोटिक सब डिवीजन के बाद, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वॉल फॉर्मेशन हो रही है और इस तरह के अकरेंस को आप देखेंगे मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स में, और स्पेशली डाइकोटिलेडन्स में आप पॉलीपेटाली कैटेगरी में देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस से जिसमें वॉल फॉर्मेशन हो रही है और जिसमें मियोसिस हो रही है और वॉल फॉर्मेशन हो रही है, उसको आप कहेंगे सक्सेसिव टाइप। ठीक है, अब जब हम दूसरा टाइप देखते हैं साइमल्टेनियस टाइप में, तो इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें 2 मियोटिक सब डिविजन्स तो होते हैं, ठीक है, ये देखिए इसमें 2 मियोटिक सब डिविजन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। फर्स्ट मियोटिक सब डिवीजन में वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, देखिए यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन हुई तो 2 प्रोमिनेंट सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई, बस यहाँ पे डिवीजन हो गया। और डायाड फॉर्मेशन, जो डायाड स्टेज है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है, यहाँ पे कोई डायाड फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, अब टेट्राड फॉर्मेशन होती है, वो कब होती है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन सब डिवीजन जब होता है तब टेट्राड बनता है, लेकिन इसका टेट्राड जो है वो टेट्राहेड्रल है। ये देखिए ये शेप टेट्राहेड्रल टाइप है। पिछले वाले में जो बना था वो आइसोबाइलेटरल था, जो पिछला वाला इसमें जो बना था दिस इज आइसोबाइलेटरल, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर देखिए ये टेट्राहेड्रल है। ये ज्यादातर इस तरह का अकरेंस आपको दिखेगा गैमोपेटैली डाइकोटिलेडन्स में। So I hope so this particular type of division of polar mother cell is clear। तो यहाँ पे एक polar mother cell से आपको कितने मिल रहे हैं, 4 सेल्स मिल रहे हैं या 4 पोलन मिल रहे हैं आपको। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ माइक्रोस्पोर टेट्राड आप देख सकते हैं, ये पैटर्न है, ये टेट्राहेड्रल है जो आपने ये देखा है, ये ज्यादातर डाइकॉट में दिखते हैं। आइसोबाइलेटरल जो है ये आपको मोनोकॉट्स में दिखते हैं, और ये कुछ अनयूजुअल टाइप के डीकसेट टाइप में है। फिर ये टी शेप है, जैसे देखिए ये टी शेप में दिख रहे हैं, न्यूक्लियस को हम देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो है आपके बिल्कुल लीनियर है। तो इस तरह से ये आपको ये इतने तरह के माइक्रोस्पोर टेट्राड आपको नजर आएंगे। ओके, ये भी एक फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्म है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। क्या होता है अब आगे कि अब ये स्पोर मदर सेल से आपके जो है पोलन बन गए हैं और मैच्योरिटी अब हो गई है, तो ये डिहिसेंस कैसे होगा, यानी कि एंथर फटेगा कैसे और एंथर स्लिट कैसे होता है। तो आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ एंथर फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस, जैसे ही मैच्योर हो गए, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैच्योर हो गया है और ये डिहाइज्ड एंथर लोब है, डिहाइज्ड एंथर है ये। तो इसमें सबसे पहले बताया था मिडल लेयर्स का सिर्फ प्रोटेक्शन का काम है, वो बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो मिडल लेयर और टपेटम जो है डिसऑर्गेनाइज हो गए इसमें,
जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ लेयर था, दैट इज मिडल लेयर और टपेटम, ये डिसऑर्गेनाइज हो गए। कौन से दो लेयर बचते हैं? केवल एपिडर्मिस और एंडोथीशियम लेयर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लेयर बचता है, थर्ड और फोर्थ लेयर जो है डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। और आप देखेंगे कि जब ये एंथर को आप जब ध्यान से देखते हैं तो एक पोर्शन जब आता है इस तरह का, जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे जो बीच का जो पोर्शन होता है, यहाँ के जो सेल्स होते हैं, एंडोथीशियल सेल्स जो होते हैं, देयर वॉल इज वेरी थिन, बहुत थिन वॉल होती है और उसको हम कहते हैं स्टोमियम, इस रीजन को। और ये स्टोमियम जो है, जब गर्मी का समय आता है, एंडोथीशियल सेल जब श्रिंक होता है तो इसके ऊपर एंडोथीशियल सेल एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ये स्टोमियल सेल्स जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। और इस रप्चरिंग से जो है ये बर्स्ट होता है एंथर, और ये पोलन जितने भी ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स, ये सारे दे आर लिबरेटेड। सो दिस इज द वे हाउ एन एंथर इज डेहाइज्ड, कैसे डेहिसेंस इनमें होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब डेहिसेंस होता है तो ये पूरा आप एक बार समरी देख लीजिए क्या अभी तक हमने पढ़ा। सबसे पहले माइक्रोस्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, स्पोरोजीनस सेल्स बनता है, से स्पोरोजीनस सेल्स आगे डिफरेंशिएट होके बनते हैं मियोसाइट्स और पोलन मदर सेल्स। और ये मियोसाइट मियोसिस करता है, मियोसिस दो मियोसिस होता है इसमें, और दो मियोसिस से हमको क्या मिलता है? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं, जिसको आप माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोसिएट और डेवलप होता है पोलन ग्रेन्स में, और ये पोलन ग्रेन जो होती है ये होती है मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए माइक्रोस्पोर्स, दो डिवाइड हुआ, न्यूक्लियोसाइट उसका डिवाइड हुआ, 2 में बना, 2 से 4 में बना, टेट्राड बना, और ये फाइनली पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये अभी तक हमने सारा डेवलपमेंट पढ़ा। अब यहाँ पे हम देखते हैं पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। पोलन ग्रेन जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर, इसका फिगर देख लो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ऑल्दो वी आर गोइंग टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस। तो इसमें आउटर कवरिंग होती है एक्साइन, और जो इसकी इनर कवरिंग होती है लाइट ग्रीन कलर का, दैट इज इंटाइन। अब इसको ध्यान में रख के हम ये पढ़ते हैं, पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स, ये पहला सेल है मेल गैमेटोफाइट का, और इसमें ये पार्शियली डेवलप्ड। अभी आपको केवल पोलन ग्रेन मिले हैं इसमें अभी आपको मेल गैमेट्स नहीं बने, इसीलिए इसको हम कहते हैं पार्शियली डेवलप्ड। और ये क्या होता है? ये यूनिसेलुलर हैप्लॉइड होता है, हर एक में एक ही न्यूक्लियस होता है, वो भी हैप्लॉइड, यूनिसेलुलर हैप्लॉइड। और शेप जो है इसका वेरी करता है, हर एक कैटेगरी में शेप ओवल से पॉलीहेड्रल शेप में आपको इसकी शेप्स वेरी करेंगे। और पोलन ग्रेन की जो वॉल है वो 2 लेयर की होती है, एक होता है आउटर एक्साइन और इनर जो होता है इंटाइन। एक्साइन जो होता है वो हार्ड है और ये सब लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होता है। ये देखिए सेक्सिन एंड नेक्सिन, ये 2 सब लेयर्स में डिफरेंशिएट हो रहा है, और ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। एक्साइन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कली के लिए भी ये रेजिस्टेंट होता है। एंड इट शोज वेरियस स्कल्पचर्स, जो कि मतलब स्पाइंस या वार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली ये वाला जो लेयर होता है एक्साइन, ये रफ होता है, और इसका रफनेस जो होता है ये 2 स्ट्रक्चर्स से होता है। ये 2 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? टेक्टम एंड बैक्यूलम। तो ये हो गया एक्साइन। एंटाइन जो होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत थिन लेयर एंटाइन होता है, और ये बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन का। इस एंटाइन के अंदर कुछ जर्म पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, एक्साइन जो है कहीं कहीं थिन होता है, और एक्साइन की बात करें, एक्साइन कहीं कहीं बहुत थिन होता है, और उस थिन जहाँ जहाँ थिन होता है वहाँ पे जर्म पोर प्रेजेंट होता है, जहाँ से कि पोलन ट्यूब बाहर आ सकता है, जहां से पोलन ट्यूब के बाहर आने का रास्ता है। क्यों? क्योंकि एक्साइन टफ होता है, तो वो पोलन ट्यूब जो कि बहुत डेलिकेट होता है, उसको ऐसी ही जगह से इमर्ज होना होता है जहाँ की एक्साइन जो है वो बहुत थिन हो, और जिस जगह पे एक्साइन थिन होता है वो जगह से बनता है जर्म, वो जगह को कहते हैं हम जर्म पोर। ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब जब मेल गैमेटोफाइट जो कि इनकम्प्लीट डेवलप्ड है, देखते हैं कि इसमें गैमेट्स कैसे डेवलप होते हैं। तो जब पॉलिनेशन होने वाला होता है तो उस समय पोलन ग्रेन 2 सेल स्ट्रक्चर होता है। जब पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन जो बना होता है उसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से 2 स्ट्रक्चर होते हैं? एक होता है जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल। बच्चों ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया जनरेटिव सेल, ये स्पिंडल शेप है, और ये जो पूरा ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन दैट इज वेजिटेटिव सेल। ठीक है,
तो 2 सेल में बना होता है, 2 सेल में डिवाइड होता है, अनइक्वल डिवीजन। आप देख लो, एक वेजिटेटिव और एक हो गया आपके जनरेटिव। वेजिटेटिव का पोर्शन बड़ा है, जनरेटिव का पोर्शन छोटा है। ये जनरेटिव सेल जो है, ये वाला जनरेटिव सेल, इसके अंदर आप देखिए जनरेटिव न्यूक्लियस है। ये पॉलिनेशन होने से पहले ये डिवाइड होता है, इसका न्यूक्लियस, और ये डिवाइड होता है इनटू 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 2 गैमेट इसमें डेवलप होते हैं, सॉरी 2 मेल गैमेट्स में डेवलप होता है ये। अब ये जो 2 सेल पोलन ग्रेन्स हैं, जब ये स्टिग्मा पे पहुंचता है तभी ये जर्मिनेट होता है, और उसमें से जो अभी मैंने बताया जर्म पोर, ये जर्म पोर से ट्यूब निकलती है, पोलन ट्यूब, और इसके अंदर जो 2 मेल गैमेट बनते हैं वो उस जर्म ट्यूब के अंदर पास ऑन होते हैं। और यही जो 2 मेल गैमेट हैं वो ट्रू सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसको आप कहते हैं स्पर्म्स। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाले फिगर में देखिए, मैनी प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज पे रिलीज होते हैं, जिसमें कि एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जेनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल क्या करता है, जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन मेन काम जनरेटिव सेल करता है, जो कि गैमेट्स को बनाता है। ये देखिए यहाँ पे ये पोलन है, पोलन ग्रेन में देखिए डिवीजन हुआ, डिवीजन में ये जनरेटिव सेल बना और ये आपके वेजिटेटिव सेल है। कुछ समय के बाद जनरेटिव सेल डिटैच हो जाता है, इट डिटैचेस, वो वॉल से, पोलन ग्रेन के वॉल से डिटैच हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे डिटैच होते हुए दिख रहा है आपको। ये डिटैच होके ये वेजिटेटिव सेल के अंदर आ जाता है। तो ये एक ऐसा फॉर्म देता है जैसे सेल विद इन सेल, मतलब एक बड़े सेल के अंदर एक छोटा सेल। जनरेटिव सेल के माइटोसिस उसके अंदर होता है, 2 स्पर्म सेल्स बनते हैं, और वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म के साथ वो एसोसिएटेड हो जाते हैं, दे आर एनक्लोज विद इन द वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये जनरेटिव सेल है, डिवाइडिंग जनरेटिव सेल, और ये जो है पोलन ट्यूब निकल रही है, पोलन ट्यूब जो है वेजिटेटिव सेल से बाहर आ रही है, और प्लस ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसमें 2 मेल गैमेट बनते हैं और ये ट्यूब के अंदर ये आ जाते हैं। तो इस तरह से ये मेल गैमेटोफाइट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स का। वेजिटेटिव सेल्स जो हैं हमेशा बिगर इन साइज हैं, दे आर बिगर इन साइज, वाइल जनरेटिव सेल्स दे आर स्मॉलर। Vegetative cells are irregular, has an irregular shaped nucleus, whereas generative cell has spindle shaped। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे स्पिंडल शेप न्यूक्लियस आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये न्यूक्लियस जो है ये क्या है, ये स्पिंडल शेप है, लेकिन वेजिटेटिव सेल की जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर शेप है, उसका कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे कि इसके साथ डेंस साइटोप्लाज्म भी है, किसके अंदर, जनरेटिव सेल के अंदर जो है डेंस साइटोप्लाज्म है। वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, तो उसका न्यूक्लियस जब ये ट्यूब सेल हम कहते हैं, तो अभी आप देखिए, अब आपको कोरिलेट हो रहा होगा, ये देखिए ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे बता रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस। तो जब ये एग्जाइम के अंदर से ये वेजिटेटिव सेल का जो स्ट्रक्चर है ये बाहर आता है ट्यूब के फॉर्म में, और इसमें जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो यहाँ आ जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्यूब सेल दिया हुआ है, और यहाँ पे क्योंकि जनरेटिव सेल इसके अंदर है वो डिवाइड होके बनाता है 2 मेल गैमेट। तो मेल गैमेट कहाँ से बनता है, जनरेटिव सेल से, और ट्यूब सेल किससे बनता है, वेजिटेटिव सेल से। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जो है इज ऑल्सो टर्म्ड एज ट्यूब सेल, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जो ट्यूब डेवलप हो रही है, ठीक है। नाउ जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब ये पूरा जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल है, इसके अंदर ये जनरेटिव सेल फ्लोट होता है, ठीक है। अब जैसे उसमें गैमेट, उसका न्यूक्लियस 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो इस ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। पोलन ग्रेन्स के यूजेस हैं, इसमें बहुत रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इससे बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा वगैरह भी हो सकता है। एलर्जी, बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं पोलन ग्रेन से, और इसके अलावा ये क्रॉप ब्रीडिंग और परफॉर्मेंसेस में भी हेल्प करते हैं। जैसे पोलन ग्रेन्स की यहाँ पे जब अगर हम एलर्जी की बात करते हैं तो हे फीवर, एक्जिमा, एस्थमा, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इसका ये भी एक इम्पोर्टेंस है। एज वेल एज ये क्रॉप ब्रीडिंग में बहुत हेल्पफुल है, ब्रीड करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये था सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, that is stamen, microsporangium as well as pollen grains.
Now in next lecture we will deal with pistil, megasporangium and embryo sac. So till then I hope so students you must have understood the topic very nicely. If you have any doubts please comment in the comment box. And thank you. Like, share and subscribe. Please do like, share and subscribe also Zahra's Classes Hindi, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification as soon as I upload any new lecture video. Thank you.